morning, students. Today we will be starting with our next chapter, that is chapter 3, New Centers of Power. So, in this new center of power, our main topic is BRICS. So, we will be studying about the BRICS in detail. Student, BRICS is a combination of five countries, that is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Have a view of this chart which is showing the cracks of BRICS in detail. Talk about the introduction of BRICS. Acronym BRICS was initially formulated in 2001 by economist Jim O'Neill of Goldman Sachs, Building Better Global Economic BRICS. The paper drew attention to the importance of the BRIC Brazil, Russia, India, and China economies and the growth of these emerging market economies. सो स्टूडेंट बेसिकली जो ब्रिक्स है वो फॉर्मुलेट हुआ था 2001 में। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, जिन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है ब्रिक्स की। सो बेसिकली ब्रिक्स उस टाइम पे सिर्फ ब्रिक हुआ करता था जिसमें केवल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो वहाँ का मार्केट है किस तरह से इमर्ज कर रहा है नई नई इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, उसके बारे में बात होती थी। O'Neill paper theorized that India and China will grow to become the world leading suppliers of manufactured goods and services respectively, and Brazil and Russia will become dominant raw material supplier. जो नील ने पेपर प्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने बताया कि जो इंडिया और चाइना है वो बहुत जल्दी वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर्स हो जाएंगे गुड्स के और सर्विसेज के, और जबकि ब्राज़ील और रशिया है वो बनेंगे रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स। In addition, O'Neill summarized that by 2050, the combined economy of the BRIC would surpass those of the world's current wealthiest country. उन्होंने एक्चुअली में जो ब्रिक को बनाने की इम्पोर्टेंस थी वो थी कि इन कंट्रीज़ में जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को मॉनिटराइज करना था ताकि जो और बाकी जो वेल्थियस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए अपने आप को और बेटर कंडीशन में लाने की पूरी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी थी। How BRIC formed? The foreign minister of the initial four BRIC states, Brazil, Russia, India, and China, met in New York City in September 2006 at the margins of the general debate of the UN General Assembly, beginning a series of high level meetings. This successful interaction led to the decision that the dialogue was to be carried out at the level of head of states and government in annual summits. A full-scale diplomatic meeting of first summit was held in Yekaterinburg, Russia on 16 June 2009. बेटा ब्रिक बना कैसे था? ब्रिक बेसिकली चार फॉरेन मिनिस्टर्स के ग्रुप से शुरू हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में मिले थे सितंबर 2006 में। एक डिबेट होनी थी, जनरल डिबेट यूएन जनरल असेंबली की, जिसके अंदर हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो डिस्कशन करते हैं कि कैसे स्टेट को और गवर्नमेंट को अपने इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डिस्कशन होता है। उसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रिक का फॉर्मेशन हो। तो इसी के चलते सबसे पहले जो ब्रिक की समिट हुई थी, एनुअल समिट, वो रशिया में हुई येकेटरिनबर्ग में ऑन जून 16 2009 में। ब्रिक टू ब्रिक्स स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये ब्रिक हुआ करता था, पहले केवल 4 कंट्रीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन था, दैट वाज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेटर ऑन साउथ अफ्रीका एडेड टू दिस, देन इट बिकेम ब्रिक्स। So, in second summit at Brazil in 2010, BRIC invited two guest nations, South Africa and Palestinian Authority,
It is believed that South Africa foreign minister received a call from Chinese foreign minister to join the group. The process of South Africa's formal admission began in August of that year. South Africa officially became a member nation on 24 December 2010 after being formally invited by the BRIC country to join the group. The group was renamed BRICS with the S standing for South Africa. To reflect the group's expanded membership, in April 2011, the president of South Africa, Jacob Zuma, attended the 2011 BRICS summit in Sanya, China as a full member. ये ब्रिक्स हुआ कैसे? एक्चुअली में जब सेकंड समिट हुई, पहली समिट का कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी। रशिया में हुई थी 2006 में। तो जब सेकंड समिट हुई, 2009 में रशिया में, तो जब सेकंड समिट हुई ब्राज़ील में 2010 में, तब ब्रिक ने साउथ अफ्रीका और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से दो, जो उनके गेस्ट नेशन थे, वहाँ से उन्होंने इनवाइट किए लोग जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो जब उन्होंने देखा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक पर्सनल इनविटेशन उनको भेजा है कि वो ब्रिक की मीटिंग को अटेंड करें, तब वो वहाँ पे आए और उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी। जब उन्होंने ये मीटिंग ऑफिशियली अटेंड कर ली, तब वो 24 दिसंबर 2010 में ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर बन गए। ब्रिक्स को क्योंकि आगे अपने आप को एक्सपेंड करना था अपनी मेंबरशिप, तो उन्होंने अप्रैल 2011 में साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा को ऑफिशियली इनवाइट किया 2011 की ब्रिक्स समिट में, जो कि सान्या में हुई थी, चाइना में, एज अ फुल मेंबर। क्या हुआ था? जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया दिसंबर 2010 में, तभी ब्रिक ने अपना नेम ब्रिक से चेंज करके एस ऐड कर दिया और वो ब्रिक्स बन गया। इसी को शो करने के लिए 2011 में जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा, उन्होंने ऑफिशियली एज अ फुल मेंबर ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करी, जो कि सान्या में हुई थी, चाइना में। साउथ अफ्रीका को इसमें क्यों पार्टिसिपेट करवाना पड़ा? हमने ये अपने और चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि नेटो का फॉर्मेशन हुआ था। नेटो में वो कंट्रीज थी जो कि कॉलोनियल राज से हाल फिलहाल में ही बाहर निकली थी। तो साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह उसी कॉलोनियल राज का शिकार था जिस पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। तो इस वजह से उसकी भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी एक तरीके से डेवलपिंग नेशन में था। तो ये जितने भी डेवलपिंग नेशन थे, उन्होंने एक ब्रिक की एक समिट बनाई, एक ग्रुप बनाया, जिसमें बेसिकली वो लोग नए नए स्ट्रैटेजीज, नए नए फॉर्मुलेशन इन्वेंट करते थे, ताकि जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ट्रैक किया जाए, और जो बाकी और वेल्दीस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कि रिच कंट्रीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन हैं, उनके टक्कर में आया जा सके और अपने आप को डेवलप्ड नेशन कहलाया जा सके। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म द ब्रिक।